to speak on uh, Suicide Prevention Day. But here, uh, understanding of mental illness and suicide. I am not expert of mental illness. Scientifically, good, I am from a psychology background. But I can correlate this mental illness with mental health. So, first I would like to speak on 10 to 15 minutes on mental health, then I will cover suicide prevention. And they have already covered so many things. We gave the data, the reasons, how to protect it. So I don't think that I will going to explain that. Anything? Let us start with the mental health. If you are not mentally healthy, then simply we can say that you are mentally ill. I will not go on the clinical aspect or scientific aspect. Why you celebrate mental health day? I will start from here. What happened? मैं ये चीज़ें बोलूँगा कंफर्टेबल में रहेंगे हम लोग. So in 1992, there was a huge case in America, and when the people estimated the cost of mental ill people and mentally unhealthy people, it was huge one, it was big one when they compared with the physical one. So they decided that WHO, World Health Organization, must celebrate or observe one day in a year. What was the basic aims and objective of that? Simply to spread awareness. We all are gathered here to only to spread and make you aware about what is the reasons, how we can stop the mental health illness as well as suicide prevention. So every year on 10th of October, they observe mental health day. And the first mental health day was observed in 1992, and then later on it came in India. Every year they give a different kind of slogans. It is catchy slogans. Like there is no health without mental health. Chaudhary Sahib will remember, Principal Sahib will remember, during our time, our guardians were focusing on who khao sehat banao. But nobody was worried about mental illness. हम लोग के टाइम ये सब नहीं था. हम लोग पता घी पियो और ये करो वो करो, और जो फिजिकली हेल्दी होता था सेकंड चौधरी साहब की तरह उसको सबसे जो दबंग है सबसे अच्छा माना जाता है. लेकिन धीरे धीरे करके इंडिया में भी ये बीमारी आनी शुरू हो गई. और उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया में भी मेंटल इलनेस के लोग शिकार होने शुरू हो गए. लेकिन व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ है क्या? आप WHO का डेफिनेशन देखें, बाकी लोगों का एक्सपर्ट का डेफिनेशन देखें, तो इतना एक एक हाथ लंबा जो है डेफिनेशन दिया हुआ है. बट आई यूज्ड टू टेल mental health simply when you are satisfied with your day-to-day work, it means you are mentally ill. आप बच्चे हैं, अगर आप क्लास में इंजॉय कर रहे हैं, शाम में घर खुशी खुशी लौट रहे हैं, टीचर्स हैं वो अपनी क्लास को भी इंजॉय कर रहे हैं, और शाम में जाके मियाँ जी भी बैठ के चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब है मेंटली हेल्दी आप हैं. सो मेंटली हेल्दी का बहुत सारा पैमाना है, लेकिन एक ही चीज हम कहेंगे कि इफ यू आर मेंटेनिंग योर वेलबींग, इफ यू आर सेटिस्फाइड with your day-to-day living, and if you are happy in the evening with the same energy, then you are mentally healthy. तो आप लोग भी इसको थोड़ा देखिए कि जब शाम में आप लौट रहे हैं तो क्या आप खुश हैं कि नहीं. अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो आप मान लीजिए कि थोड़ा मामला गड़बड़ है. In the context of students, how we are unable to maintain our mental health.
सबसे जो एक आई कंडक्टेड ए सर्वे इन AMU when I was director of counseling center. I established one counseling center in AMU. That and I conducted a survey and I found that parental pressure is number one. Every parents wants to see that our child should get more than 95%. अभी जो CBSE का है तो आप देखेंगे 92, 93, 94 और 100%. उन माँ बाप से मैं कहता हूँ कि if your child gets 100%, then after what? कुछ बचा ही नहीं उसके लिए मेहनत करने की. And if any child is getting 90%, so there is a scope to improve himself. माँ चाहती है कि बेटा हमारा डॉक्टर हो जाए, बाप चाहता है इंजीनियर हो जाए, और बच्चे में जो एबिलिटी एक बहुत अच्छा शायर बनने की है एक साहब की तरह, ओके चौधरी साहब की तरफ एबिलिटी है डायरेक्टर बनने की, चेयरमैन साहब की तरह एबिलिटी है मैनेज करने की. अब वो चीज़ तो खत्म होगी ना, ये कुछ और चाहते हैं. सो वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द रियल एबिलिटी, रियल टैलेंट अबाउट चाइल्ड. हम लोग एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जनरली द पेरेंट्स सी देयर ओन ड्रीम इन देयर चिल्ड्रन, और यहीं पे गड़बड़ हो जाता है. अगर हम डॉक्टर नहीं बने, IAS ऑफिसर नहीं बने, वाइस चांसलर नहीं बने, तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा हो ऐसा ही हो जाए. इट इज नॉट पॉसिबल. एकदम आप मान के चलिए, देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एवरीबॉडी डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. शक्ल में भी तो हम लोग देखते हैं, लेकिन अकल में भी डिफर करते हैं. सो व्हेन यू टेक द क्लासेस, टीचर से मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो ये मान के चलिए हमारे क्लास में जो बच्चे हैं दे आर नॉट इक्वल. कोई स्लो लर्नर है, कोई तेज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये मान के चलिए. तो सेकंड जो हमारा सर्वे का आया रिजल्ट, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इतना हो गया, जैसे हम पुटिंग वन एग्जाम नीट. हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे अपीयर फॉर द नीट? 26 lakh. And how many seats are there? Only 30 to 35,000 government seats. तो इतना एफर्ट करने के बाद मेरी बेटी मेडिकल क्वालिफाई की. She used to study 12 to 14 hours per day. और उसमें भी गारंटी नहीं है कि she is going to get the government seat. और ऊपर से पेरेंट्स का तो प्रेशर है ही है. So इस सिचुएशन में, और कोई भी एग्जामिनेशन देख लीजिए, मैं बहुत सारे BPSC, UPPCS, UGC सबसे अटैच्ड हूँ. For 10 posts, a lakh of students they apply for that. Even अभी एक डाटा मैं देख रहा था मैडम, एक पुलिस का जो हड़ताला होता है, जो साइकिल से मैसेज लेके जाता है, 10 पोस्ट निकली, तो उसमें PhD वाले अप्लाई किए, डॉक्टर अप्लाई किए. लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टेंस होने की जरूरत है नहीं है. If you are excellent in your field, you will be asked, you will get job. ये एक परेशानी जो निकल के आई. And the third is study pressure. All the time the parents put pressure कि study करो, study करो, study करो. खेल का टाइम ही नहीं देते. उनसे ये नहीं कहते कि तुमको कहाँ खेलना है, क्या करना है, नहीं करना है. प्रेशर बिल्डअप करते हैं. एक सीमा तक हम लोग प्रेशर को जो है सहन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते. So and then जब हम टॉलरेट उसको नहीं करेंगे, then mental illness, हमारा मेंटल हेल्थ खराब होगा. मेंटल इलनेस के तरफ पे एंजाइटी आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, पता नहीं और क्या क्या आ जाएगा. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर. इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर देयर इज नो गारंटी दैट यू आर गोइंग टू गेट जॉब. आप देखिए अभी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, मोर देन 14, और गवर्नमेंट तो डाटा ही नहीं दे रही है. अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए बच्चों के लिए कि आप थोड़ा सा अपना और बढ़ा दो. कि अगर एक सवाल पूछा जा रहा है तो उसको 3 तरह से आप जवाब दें, तो शायद ये मामला हो जाएगा. देन पेरेंट का प्रेशर और भी है कि एक्सेलेंट ने ये नहीं दिया था. ये पेरेंट का प्रेशर क्या है कि दे शुड एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स. वो राइडिंग भी कर ले, स्केटिंग भी कर ले, क्रिकेट भी खेल ले, फुटबॉल भी खेल ले और पढ़ाई भी कर ले. इज इट पॉसिबल? आई एम आस्किंग पुटिंग वन क्वेश्चन टू यू. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. देन एक और चीज आ गई है, लुकिंग गुड. इट्स वेरी गुड टू लुक गुड. ये अच्छी बात है कि हम अच्छा दिखें,
और ये women की एक साइकोलॉजी है कि बनना संवरना उनको पसंद होता है, अच्छा दिखना है। लेकिन आजकल लड़के ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए, जिम जा रहे हैं। जिम जाना अच्छी बात है, ब्यूटी पार्लर जाना भी अच्छी बात है, लेकिन आप जाके थ्रेडिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, इट मीन्स यू आर चेंजिंग योर कैरेक्टर। So you will be in conflict. Neither you will be the women, nor will be the men. So there will be a conflicted situation. और जब conflicted situation होता है, then your mind is blocked. आप सोचने की सलाहियत आपके अंदर खत्म हो जाती है। दो situation होता है, either you fight or you fight. If you develop the fighting spirit, you will accept. And when you develop the fight, तो आप situation से भाग जाएंगे। तो एक यूवी आ रहा है, अब पीयर प्रेशर भी आजकल आ रहा है, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, पीयर प्रेशर, चलो यार आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, अम्मा पापा की बात आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो अनदर इज ड्रग। ड्रग इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग, एंड अलीगढ़ में भी ड्रग आ गया है, कश्मीर में आ गया, उसके बाद हिमाचल में आ गया, उसके बाद हरियाणा में आ गया, अलीगढ़ में आ गया। आप चले जाइए उसके नीचे, कटोले के नीचे, यू विल फाइंड एवरी, दिन भर मांगते हैं और सुनते हैं, रिक्शे वालों के पास चले जाइए, उससे बच्चों में भी आ रहा है, मुस्लिम के बच्चों में भी ये चीज़ें आ गई। सो ड्रग को भी वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे डैमेजिंग जो चीज़ है दैट इज सोशल मीडिया। व्हाट इज द यूज ऑफ मोबाइल? देयर आर ओनली टू यूज ऑफ मोबाइल, वन इज गेटिंग इंफॉर्मेशन, अनदर इज कम्युनिकेशन। लेकिन मोबाइल को हम लोगों ने इंटरटेनमेंट का साधन बना दिया। फादर इज इन्वॉल्व इन अनदर साइट, मदर इज इन्वॉल्व विद अनदर साइट, और बच्चा उसके पास जाके कह रहा है कि पापा मम्मी वो लोग झिझक के भगा दे रहे हैं। थिंक अबाउट द मेंटल स्टेज ऑफ दैट बॉय और गर्ल। और आप लोग बड़े हैं, आप लोगों से बता रहा हूँ कि मोबाइल बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत डेंजरस। अगर एक आप जाइए, AI आ गया है, किसी चीज़ पे क्लिक कीजिए तो उस तरह की 100 चीज़ें आपके सामने आ जाती है। 2 घंटा 4 घंटा कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता। इन माई क्लास आई मेड इट वर्बल सर्वे एंड आई पुट 3 क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर स्टडी? 6 hours, nobody raised hand. 4 hours, nobody. 2 hours, 1 hour, everyone. Then I put second question. How much time you are giving to this mobile? 4 hours was average. 4 hours आप अपने आप को थोड़ा सा एहसास करके देखिए कि मोबाइल पे कितना घंटा आप टाइम दे रहे हैं। आप देखिए, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, मोबाइल है, हमने there are only 2 use: getting information and communication. Within a second you can talk to your parents, your friends, your teachers. वहीं तक मैं दूर रखिए, उससे आगे आप नहीं जाएंगे। So these are the factors which create some problem at your mental level, and so your mental illness coming. वो डाटा हमारे पास है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक डाटा आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूं कि क्या रेशियो है साइकोलॉजिस्ट में और उसमें जो चीज़ें आ रही हैं। You see, the WHO already pointed out, not WHO but one psychologist, Kaplan, 20 years back, he said 21st century will be the time of psychologists, counselors, social workers. It means आप देख लीजिए कि ये केसेस कितनी बढ़ रही हैं, and 60 to 70 million people in India suffering from common or severe mental illness. 60 to 70% mild. आप देखिए किसी के पास आजकल टाइम ही नहीं है, आप बात करते चलते चलते बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसी में बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। एंड बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट पब्लिशिंग एनी डाटा। सॉरी सर, NCERT को छोड़ दीजिए, वो है 1.71 12.4% वो है, लेकिन बाकी चीज़ के लिए डाटा हमारे पास नहीं आता है, गवर्नमेंट पब्लिश नहीं कर रही है। कल मिनिस्ट्री के लोग आए थे, उनसे भी हमने यही कहा कि डाटा तो पब्लिश कराइए ताकि हम लोग देखें किस एरिया में क्या हो रहा है। एंड बेसिकली हम 19 की डाटा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट डाटा सेज 1 in 5 पीपल इन इंडिया नीड काउंसलिंग।
काउंसलिंग का भी एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा भी चौधरी साहब से कह रहा था मैं कि आजकल काउंसलर की डिमांड बहुत हो गई है, अपने आप कोर्स आप चलाइए, मैं डिजाइन मैं ऑफर करता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग और उसका क्वालिफिकेशन लिख दीजिए, BA साइकोलॉजी, सोशल वर्क, एजुकेशन, ह्यूज नंबर। अभी भी नीड एटलीस्ट 50 लाख काउंसलर्स इन इंडिया, 50 लाख। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा है। I'm वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंस्पा, इंडियन स्कूल साइकोलॉजी एसोसिएशन। सो वी रन कोर्स फॉर 3 months और एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप जाइए मेंटल हेल्थ इशू को वो सॉल्व कीजिए, नॉट मेंटल इलनेस, बिकॉज दिस इज नॉट आवर एरिया, दिस इज एरिया ऑफ साइकेट्रिक पीपल। आउट ऑफ 103 पीपल आर डिप्रेस्ड। अभी डाटा और बढ़ गया होगा, 4-5 हो गया होगा। एंड मोर problematic thing and more 9.4% adolescents are suffering from mental illness. Almost 10% students, adolescents, the age group of 11 to 19, they are suffering from mental illness, particularly at the time of examination. जब बोर्ड का एग्जामिनेशन देखिए तो होता है तो कितने लोग सुसाइड करते हैं, and almost 11 people in 1 lakh they commit suicide due to mental illness. This is the WHO data. और कितना केस रजिस्टर नहीं होता है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अब 50% of mental health conditions begins by age of 14. This is the crucial age, that is 12 to 19 years. जो adolescent age होता है, they are always confused because there is a hormonal changes. I think you people better understand than me. Then some physical development. They are confused. आप लोगों में से हम लोग पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आप लोग ये बता दीजिए कि जब बच्चा 11 साल से लेकर 18 साल के बीच होता है या 12 साल का होता है, तो कितने लोग उसके पाकी नापाकी के बारे में बताते नहीं बताते। आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया। मैं अपनी बच्चियों को मेडिकल कॉलेज में ले जाके अपने स्टूडेंट से कहा, when they were 10 and 11 years old, भाई इनको बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसको कैसे सेटिंग करें, क्या करें, बॉयज के लिए क्या करना है। वो देन शी रिप्लाइड कि सर इनको मालूम है। मतलब क्यों से हमको डर लगा कि किसी और से तो शेयर नहीं करते स्कूल में, कहीं मदर है ऑलरेडी सर। इसमें कोई क्या बुराई है, इट्स अ नेचुरल थिंग। इसको बताने के लिए बताइए आप, इतना कंफ्यूजन रहता है एडोलेसेंट एज ग्रुप के ऊपर कि इतने कंफ्यूज होते हैं कि उस एज ग्रुप में 2-3 चीजें आती हैं। दे वांट लिबर्टी, वो सोचता है कि मैं तो बड़ा हो गया। माँ बाप कहते हैं नहीं छोटे हो, रुक जाओ, बच्चे हो। वो फ्रीडम चाहते हैं, फिर भी आप लोग के घर में रखते हैं। लड़कियों के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, अरे बड़ी हो गई है, घर से बाहर मत निकलो। आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक सबसे मिलने दिया और एक आएगा आप पाबंदी लगाने जा रहे हो। तो ये कंफ्यूजन का एज है। द बेस्ट वे टू रिजॉल्व मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि भाई वो किसी को ना हो, वो जिंदगी तबाह हो जाती। इवन देयर इज नो एनी मेडिसिन इन साइकेट्री और इन मेडिसिन कि उनकी रिकवरी हो जाए, नहीं। और जो दवा आप दे रहे हैं ना, स्लीपिंग पिल्स दे रहे हैं, एंटी एंजाइटी दे रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैवलिंग हो जाती है, फॉरगेटिंग हो जाती है, तमाम चीज़ें हो जाती है। सो एट द इनिशियल स्टेज, if you only talk, if you only share the quality time with our students or boys and girls, son and daughters, then वो उस पे मामला सही हो जाता है, उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। अदरवाइज ये तो एज होता है एक्सप्लोरेशन का कि भाई लड़कियों में ये क्या हुआ, लड़कों में ये क्या हुआ, दुनिया कहाँ से जा रही है, ये क्या हो रहा है, वो कर रहा है। If you not properly guide them, if you not counsel them, the bad path they will opt. And 75% of mental conditions develop by age of 24. ये कब आता है? नौकरी नहीं है, घर वाले पर कब तक डिपेंडेंट रहे, सैलरी आजकल उतनी नहीं मिल रही है, पेट कहाँ से भरे, ये शादी होनी है, ये सब जो है उसके बाद शुरू हो जाती है 75% में। And 970 million people around the world struggling with some mental illness. And 14.3 of death is due to the mental disorder. एक वो मेरे ख्याल में डाटा मेरे मोबाइल में है, तो वो
शेयर नहीं करूंगा। आपको ये सवाल पैदा होता है कि इससे मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं उसी में ऐड कर दूंगा आपके सुसाइड प्रिवेंशन वाला। सो मेंटल इलनेस इसलिए होगा जब हम मेंटली हेल्थी नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें आपसे हमने शेयर। नाउ कम टू द एक्चुअल पॉइंट। बेग साहब से मेरी बात हुई थी कि सुसाइड प्रिवेंशन पे बोलना है मुझे, ये तो एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दिया था। So far as suicide is concerned, it's not a नई चीज़ कोई नहीं। जब से अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तब से ये है, ये होता रहा है। और बहुत सारे जो फिलोसफर्स हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, डिकार्टिस, उन लोगों ने डिफरेंट उसमें उसको ग्लोरीफाई किया है, रोमांटिसाइज किया है, कंडेम भी उसको किया है। बट व्हाट इज सुसाइड? होता क्या है? Simple meaning of suicide, it is act of intentionally causing one's own death. Simple बात जब उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। It's a very critical issue, as Professor Beck pointed out that latest data 1,71,000 लगभग per year लोग सुसाइड इंडिया में करते हैं। Also he pointed out 12.4%. I think sir it is more than that. ये एनसीईआरटी कहता है, लेकिन बहुत सारे इलाके में आप जाके देखिए लोग सुसाइड करते हैं, बताते नहीं है किसी, गाँव का डेटा कहाँ जाते हैं, FIR लॉन्च नहीं होता है। तो मेरा तो ये मानना है मोर देन 2 लाख पर एनम द पीपल कमिट सुसाइड। एंड व्हाट इज द की फैक्टर ऑफ सुसाइड? नंबर 1 इज मेंटल हेल्थ। मेंटल इलनेस तो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो पागल हो जाए वो कर ले, जो शिज़ोफ्रेनिक हो जाए, कंप्लीट डिप्रेशन में चला जाए, या जिसको ओवरटी शिज़ोफ्रेनिया हो जाए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो जाए, वो तो करेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये वो कर लेते हैं। दो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फूड फॉर 82 करोड़ पीपल। सर मोस्ट बेटर, जिस कंट्री की आबादी 140 करोड़ हो, वहाँ पे आप ऑलमोस्ट 60% लोगों को सिर्फ जिंदा रख रहे हैं 2 वक्त के खाने के ऊपर। क्यों नहीं सुसाइड करेगा? उसका बच्चा पढ़ने कहाँ जाएगा? काम उसको नहीं मिल रहा है, बीमारी होगी तो कहाँ दिखाएगा? आप चले जाइए अलीगढ़ के मेडिकल की बात मत कीजिए जहाँ तो फ्री में इलाज किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, पहले 5 लाख रुपये लगवा लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं। उसके बाद उसमें भी कुछ इस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इतनी गड़बड़ है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दे रही है, वो बीमारी होती नहीं है और उनसे पैसा वसूल लेते हैं। एंड एकेडमिक प्रेशर, वो हमने डाटा बता दिया, ऑलमोस्ट 11 स्टूडेंट्स इन द कमिट एट द सुसाइड। एंड देयर इज अ स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल इलनेस एंड मेंटल हेल्थ। वो क्या कहते हैं कि हम किसी काउंसलर के पास जाएंगे, साइकेट्री के पास जाएंगे तो लोग मुझे पागल समझेंगे। ये स्टिग्मा है। बल्कि 750 में और 850 में मुस्लिम्स, अरेबियन मुस्लिम्स ने बगदाद में सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल कायम किया। एंड दे पॉइंटेड आउट दैट लाइक फिजिकल इलनेस, दिस इज अ मेंटल इलनेस। और पहले क्या होता था, बहुत ही रूटली उनका ट्रीटमेंट होता था। आप लोगों को पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि चैन से बांध देते थे, केज में बंद। स्टिल दिस इज प्रेवलेंट इन इंडिया, न्यूज़ आता रहता है, माँ बाप को बंद कर दिया। और एक ड्रिल करता था, और उसका क्या था, एक कि जितना कहते थे कि इविल सोर्स, भूत प्रेत घुस गया है, तो ड्रिल करते थे, चिल्लाता था तो कहते थे कि भूत भाग रहा है। मैं एक कहानी आपको सुनाऊं कि हमारे गांव में एक थे, बुजुर्ग थे, वो लोग कहते थे कि इनके ऊपर जिन्नात है। एट दैट टाइम वी वर इन क्लास 7 और 8, तो 8-10 दोस्तों ने क्या किया कि इनका भूत भगाते हैं। कहीं से सुना था कि मिर्च सुनाने से भूत भागता है। चोरी करके हम लोग मिर्च लेके आए, उपला इकट्ठा किया एक बर्तन में, कोई कंबल लेके आया, उसको जला के और भोज दादा के सर पर कंबल उड़ा के घुसेड़ दिया। वो चिल्लाए तो हम लोग कहा तो जिन्नात भाग रहा है, भूत भाग रहा है। तो दिस इज नॉट, वी शुड कंसीडर दैट लाइक बगदाद में मुस्लिम्स
फिलोसफर्स ने ये कहा कि नहीं, दे शुड बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बीइंग। मेरी आवाज तेज है, तो उन्होंने उस तरह से ट्रीटमेंट किया, बट वी शुड कंसीडर, और ये टैबू है कि हम काउंसलर के पास नहीं जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन अगर मेंटल इलनेस की कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ नॉट मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस की अगर प्रॉब्लम है, यू डायरेक्टली टेक दिस पीपल टू द मेडिकल कॉलेज। किसी को अगर है, वहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट है, वो ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, सिर्फ आप बैठ के उनसे 10 मिनट बात कर लीजिए, 10 मिनट में कह रहा हूँ, तो वो कहेगा यस नाउ मैं हल्का हो गया, फ्री हो गया, क्योंकि आजकल सुनने वाला कोई नहीं है। मैं जब डायरेक्टर था काउंसलिंग सेंटर का, एक लड़की आई कि सर मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने डिप्रेशन में जाती तो मेरे पास नहीं, उनका एंजाइटी, किस बात की एंजाइटी? क्या कि हमने एक इंस्टाग्राम कोई होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि उस पर फोटो पोस्ट मैंने और मेरे दोस्त ने किया था, उसको 500 से ज्यादा लाइक आ गया, अब मुझे 3 आया है। तो मैं कहा कि ये बताओ, क्या तुमको शादी करना है उससे, या जो 500 जिन्होंने पोस्ट किया है वो जानते हैं उसको? नहीं। वो तुम्हारी दोस्त उनको जानती है? नहीं। तुम्हारे 3 उसको जानती है? तो नहीं। मैं कहता वही बात हो रही, तुम परेशान किस बात को? शादी करनी नहीं है, नौकरी लेनी नहीं है, तुम 3 के चक्कर में क्यों पड़ोगी? 3 तो चलो कर दिया, 300 के चक्कर में क्यों पड़ोगी? अगर करना है तो एक ही से करोगी ना, तो देन चूज वन एंड गो अहेड। अरे सर हमको ये पता नहीं था। मैं कहती पैसे देख के लाइक और डिसलाइक कराया जाता है सोशल मीडिया की तरफ से, कि जितने लोग करेंगे उनका वो पैसा चल जाता है। सो यू ट्राई टू ब्रेक द स्टीग्मा इन द सोसाइटी। आप लोग हैं, अपने अपने गांव में या शहर में जहाँ भी रहते हैं, उनसे थोड़ी बात कीजिए। आप 10 मिनट बात कीजिए, जिनके साथ प्रॉब्लम है बात छोड़िए। आप क्लास में कोई बच्चा अगर परेशान बैठा हुआ है, 2-4 लोग चले जाइए, भाई क्या बात है, जरा सुनाओ कहानी। तो किसी लड़की के बारे में सुनाएगा, उसके वजह से हो सकता है, फैमिली के बारे में सुनाएगा, उसके वजह हो सकता है, टीचरों जो टीचर डांटे होंगे उनके बारे में सुनाएगा, वो भड़ास एक तरह से निकल जाएगी। एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, और साइकोलॉजी में हम लोग इसको कहते हैं टॉकिंग आउट। जो मन में है निकाल बाहर करो, खत्म करो इसको, क्या करना है। तो इस चीज को आप देखिए। एक और डाटा जो आया है, रीजनल डिफरेंसेस शो हायर रेट्स इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। रूरल एरिया में क्यों आ रहा है भाई? ये तो अर्बन एरिया में आना चाहिए, रूरल में क्यों आ रहा है? व्हाट आर द रीजन फॉर द कमिटिंग सुसाइड? द रेट इज मोर। मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, और इंडिया इज इन ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन हो रहा है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ऑफ कर रहे हैं। अब आ गया ना स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, मुझे नाम भी नहीं मालूम है। मैं टेलीफोन पर 5-10 मिनट में खाना आपका बन के आ जाता है। ये बीमारी देहात में भी हो सकी। माँ बाप का खाना तो अच्छा आपको लग नहीं रहा है, तो चलो भाई बाहर से हम मंगवा लें। So far as suicide is concerned, it is one of the leading, death cause of death worldwide after HIV, malaria, breast cancer, war, and homicide. ये चौथा रीजन है, and it is the third leading cause of death among youth adults 15 to 49 जो ईयर वाले एज हैं उनमें जो ये है, and it is also the second leading cause of death in 24 years of age. पहले ये कम था, आपने पिछले बार हमने डाटा आपको बताया था, अब ये 10 साल के बच्चे भी कर रहे हैं। रीजन क्या है? जो मोबाइल देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक रीजन है। उसमें एलेक्सा पता नहीं क्या क्या आता है कि जाओ ऊपर जंप करो, देखो कितना मजा, पता लगा कि वो लौट के आया ही नहीं। एंड WHO रिपोर्टेड दैट लगभग 7 लाख लोग सुसाइड करते। नहीं, मेरा ये मानना है कि मोर देन दैट। अनऑफिशियल डाटा से मोर देन 10 लाख। एंड द यंग पीपल इज ग्रुप ऑफ 15 to 29 आर पर्टिकुलरली एट रिस्क। जो 15 से 29 साल के, थोड़ा सा बताया था कि 25 साल वाला जो है वो हो जाता है।
Then I want to share some data regarding male and female at global level. Almost male 12.3 per lakh, यानी लगभग 13 लोग मेल जो है 1 लाख में 13 लोग सुसाइड कमिट करते हैं। फीमेल जो है 5.9, जबकि मेंटल हेल्थ का डाटा आप देखिए तो फीमेल जो है 100 में से 4 उनको मेंटल हेल्थ इश्यू है, जबकि मेल को 1 ही है। फीमेल को इसलिए ज्यादा है कि दे हैव मल्टीपल टास्क ओरिएंटेड, बच्चे को भी पालना है, अपना जॉब भी देखना है, मियाँ को चाय भी बना के देना है, खाना भी करना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे आई एम हैप्पी दैट द फीमेल आर जस्ट हाफ देन द मेल। एंड हाई इनकम ग्रुप 10.2 जो है वो इसमें आ रहा है क्या? यस। सो ग्लोबल एवरेज 16 एंड इंडिया एज प्रोफेसर बेग पॉइंटेड आउट 12.4। because NCRB data says it is I think it is not correct। एक जगह ये तो दे रहा है कि इंडिया इज द डेथ हब इन द वर्ल्ड। सो और 1 death every 40 seconds and 1 attempt every 3 seconds। सुसाइडल आइडिएशन आता है, उससे वो लोग कर रहे हैं। बट इफ यू टेक द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, अल्लाह ताला सेज दैट और सेकंड थिंग इज दैट, सर आप बात तो आप लोग कीजिएगा ना तो मेरा थोड़ा सा टेंशन प्लीज, बाहर निकल के चाहे फिर हम लोग आ जाते हैं। so, ये अगर आप मुस्लिम हैं, इवन हिंदू रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में कहीं भी अलाउड नहीं है। हर खुशी हराम है, जस्ट लाइक पिग इज हराम, शराब इज हराम। अगर उससे बचते हैं तो इससे क्यों नहीं बचते? एंड एक ही चीज हम लोग सोचें कि ये जिंदगी तो हम एक आंख एक नाखून नहीं बना सकते, बनाया किसने? आप इसमें 2 मिनट गौर कीजिएगा कि अगर जिंदगी अल्लाह ने दी है, आपकी बनाई हुई नहीं है, तो आपको क्या हक पहुंचता है कि आप जिंदगी को खत्म कर दें? अभी बेग साहब से मैं कह रहा था कि हार्डली 10 सेकेंड इज एनफ फॉर कमिट सुसाइड। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी से पूछो, आप गाली हुई, निकाला मार के, पता है ये तो मर्डर करना है। और उसी तरीके से 10 सेकेंड में आता है कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, जबकि एवरी प्रॉब्लम हैज सम सॉल्यूशन। अब जो है हमको 3rd डिवीजन आ गया, हमको 2 पेपर में बैक आ गया। तो ये जो जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम लो है, वो कहते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं, चलो खत्म करेंगे। इट टेक्स ओनली, अगर मार लिया तो, हैंग कर दिया तो, और दुनिया का सबसे ज्यादा पेन हैंगिंग होता है। और एक और डेटा बता दो, जो एक बार कोशिश किया ना, दूसरी बार कभी भी नहीं करेगा, वो बता देता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। देन इन 2015 1,33,000 लोगों ने सुसाइड किया। दिस इज द एंड 16 में आप देखेंगे इसको डाटा को, तो ये 24 तक आगे बढ़ते हैं। और ये डाटा जो है वो 24 में जो डाटा दिया है इन्होंने, वो 21-22 का उन्होंने दिया है, ठीक है। सो द ट्रेंड इज इंक्रीजिंग साइड। सो क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप इट। कहीं ना कहीं इस पर रोक तो लगनी चाहिए ना, लेकिन ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान है, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से प्लान है। आई एम हैप्पी दैट एट लीस्ट you people are organizing and 50 people they are listening and they will spread Aligarh Muslim University में I took charge on 4th and in the history of AMU for the first time I observed this suicide prevention day on 10th of this month and I involved students, all my MA students, PG and UG, more than 400 they participated in that and Vice Chancellor she also worked for 15 minutes। तो एक बच्चों को आपको सोचना है, आप अपने टीचर को कहिए कि हम प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, पोस्टर कंपटीशन करके निकालें अपनी बात, कुछ स्लोगन्स बना के अपनी बात निकालें, कुछ डाइस पे आके बोल के अपनी बात निकालें। तो इस तरह के प्रोग्राम
मेरे ख्याल में अलीगढ़ में ये पहला जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो कर रहा है। So I'm sharing the state wise. Maharashtra is 13.6. I don't believe in that. ये डाटा नहीं आ रहा है। Then Tamil Nadu 9.7. Just Uttar Pradesh. Do you think that it is only 3.9%? No, not possible. सबसे ज्यादा तो यहीं पे हंगामा हो रहा है। सबसे ज्यादा तो मतलब कि जिनको गोली मारी जा रही है, जिनको घर गिराया जा रहा है, क्या उनके लोग सही मेंटल स्टेट में हैं? आप सोचो यार, उनको घर बनाने में 1 साल में मैं वजन कम हो गया, कितने पैसे लग गए, और जिसने घर बनाए, एक झोपड़ी बनाया, उसको जाके गिर रहे हो, क्या उसके ऊपर हो रही है? और 80 करोड़ जहाँ पे आप दे रहे हो खाने के लिए, तो 80 करोड़ तो ऐसे ही बीमार हो गया। उसके पास वो क्यों है? साइकोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि दे शुड ओनली थिंक फॉर ब्रेड एंड बटर, नॉट फॉर द अदर एस्पेक्ट्स। अब गवर्नमेंट के बारे में यहाँ बोलूँगा तो शायद मैं भी अंदर चला जाऊँगा, इसलिए एवरीबॉडी नोज द फैक्ट्स। पता नहीं क्या क्या ये आता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की तरफ आप मत जाइए, आप मत देखिए, आप गुस्से में आके किसी को गला दबा सकते हैं। होता है, एफिनिटी होती है। हाँ मुस्लिम, तो मैं मुस्लिम की तरफ जाऊँगा, कोई हिंदू है, हिंदू की तरफ जाएगा, उसको देखना बंद कर दीजिए। द मोमेंट यू स्टॉप, देन आप नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव आप कोई चीज देखते हैं ना, एक नेगेटिव चीज देखते हैं, तो 10 पॉजिटिविटी आपकी। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट माय प्रेडिक्शन इज दैट विदिन 2 or 3 years द होल सिनेरियो विल चेंज एंड सब लोग मिलजुल के रहना शुरू करेंगे। अब बहुत हो गया। Yes, yesterday Buddha was distributed in झारखंड, और हम तो कहेंगे अलीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो हिंदू बच्चे हैं उनको हम गमछा बढ़ाएंगे, आज अब तुमको बढ़ाते हैं, खुश हो जाओ। सो दे आर चेंजिंग देयर नैरेटिव्स। पॉलिटिक्स में हमको नहीं जाना है। नाउ कम टू द एज ग्रुप। 60 इयर्स वाले जो है मेल 8000 लगभग वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, और फीमेल जो है अराउंड 2700। The women should be happy here. Then 45 to 60, 20,000 around, and 44,000. But सबसे जो खतरनाक चीज जो है बिलो 18 वाले, अभी उनकी जिंदगी तो शुरू नहीं हुई ना, वो सुसाइड कमिट क्यों कर रहे हैं? Only due to lack of parenting. I'm telling you, the parents are not giving the quality time with their children. They don't listen their problems or issues. Even they don't take suggestion from them. भाई उसको करना है, उसकी जिंदगी शुरू होनी है, उसकी बात भी तो सुनो, नहीं सुनते हैं। They try to impose all the time their own decision. उस वक्त तो भाई कमजोर है वो, पैसा उसके पास नहीं है, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पड़ेगा, तो बर्दाश्त कर लेता है, वही बुढ़ापे में जाके निकालता है, घर से बाहर निकाल देता है। इसका आफ्टर इफेक्ट जो है ना 30 साल 40 साल के बाद दिखाई देता है। देन सुसाइड विक्टिम्स बाय सोशल स्टेटस, आप ये देखिए, अनमैरिड 21,000, ये तो समझ में आता है कि शादी नहीं तो करनी है, लेकिन जो मैरिड वाले हैं उनका क्या है? सी difference in the data, कि 21,000 male and 11,000 female, and here 66 and 25, and that is why we focus on the family counseling. मैं ये कहता हूँ कि जब मियाँ गुस्सा हो जाए तो बीवी मुंह में ताबीज रखे, और जब बीवी गुस्सा हो जाए तो मियाँ कान में जो ठूंस दे, बात ही नहीं होगी। एक लेडी गई, आप बुरा मत मानिएगा, मैं बीच में जो भी सुनाता रहता हूँ, थोड़ा नहीं होगा। मौलाना के पास गई, कहा कि मेरा मियाँ बहुत झगड़ा करता है, बहुत बोलता है। तो मियाँ ने कहा कि वो मौलाना ने कहा ठीक है, मैं दवा दे रहा हूँ। उन्होंने कुछ पुड़िया उड़िया बना के दे दिया। उन्होंने कहा कि जब आपका मियाँ बोले तो मुंह में डाल दीजिए। तीसरे दिन पहुंच गई, पूछा झगड़ा हुआ? नहीं। तो कहा कि क्यों? कहा कि आपकी दवा मुंह में डाल लेती थी। कहा कि कुछ समझ में आया? कहा कि नहीं। कहा कि आप नहीं बोलती थी इसलिए झगड़ा नहीं होता, कि when there is a stimulus there is a response। साइकोलॉजी का है ना? लेकिन अब झगड़ा तो पता नहीं आगे चल के खत्म हुआ या नहीं हुआ,
तो एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आपको साइकोलॉजिस्ट मत बनिए, आप काउंसलर मत बनिए, आप अच्छे एडवाइजर बन जाइए। एक निर्मल बाबा आता था टीवी पे, याद है आप लोगों को कुछ? वो आशीर्वाद बांटता था। बाबा जो है जो जाए आशीर्वाद, क्या पहने हो, कच्छा किस कलर का है, मोजा किस कलर का है। एक आदमी गया, उसने कहा कि सर 21 साल से जो है बीवी शादी के हो गया और डेली लड़ाई होती है। उसने पूछा से बनियान क्या पहने हो, जूता क्या पहने हो, मोजा क्या पहने हो, जैसे वो अपना उसका स्टाइल है। आई थिंक नाउ इज तो हो गया। उसके बाद कहा जाओ बजरंग बली को 21 दिन लड्डू चढ़ाना और आज जाके बीवी की तारीफ करना। आगे बाबा का आशीर्वाद है, हम हो ही जाएगा। गया, घर पहुंचा और खाना मांगा, एक लुकमा खाए और 10 बार तारीफ करे कि क्या चटनी बनी है, क्या खाना बना है, क्या ये बना है। थोड़ी देर के बाद बीवी झाड़ू लाके लगी मार, भगवान अब क्यों मान रही हो? आगे पड़ोसी की ऐसा खाना बन so, मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आप काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट मत बनो बिना इसमें डिग्री लिए हुए। कहना होगा कुछ, कर दोगे कुछ, तो उसमें आप पिस जाओगे। So there is a problem between husband and wife. That is why this data is, more 66 and 25. Then widow, then divorcee and separate वाला तो एक बात समझ में आ गई कि उनके पास कुछ रहता नहीं है। Then another is drug abuse 5.6%. जो ड्रग्स ले रहे हैं। मैरिज प्रॉब्लम, अलीगढ़ में मैंने प्रोफेसरों के बीच देखा है कि शादी जो है 1 साल के अंदर टूट गई। यू नो द रीजन? जो हमने काउंसलिंग की उनकी उससे एक ही रीजन पता आया कि देयर इज इंटरफेरेंस ऑफ सास, बोथ, दोनों की सास और दोनों के वो ससुर। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि देखो भाई शादी होगी, मेरे घर रोटी में बता अपना सोल्यूशन निकाल के ना, ज्यादा होगी तो आई हस्बैंड रो के मत आना, 2 बात बर्दाश्त करना। बट पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, देहात के लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनकी बीवियां 2 डंडा खा के वो कवर कर लेती हैं। मियाँ जो है वो 2 झाड़ू खा के चुप हो जाता है, जो पी के आता था बीवी झाड़ू। रिसर्च हुआ इसमें, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं है। एवरीबॉडी थिंक दैट आई एम पीएचडी, आई एम प्रोफेसर, बीवी कहती है आई एम प्रोफेसर, हो गया काम। और ये मेरी बेटी है, ये बेटा है, देखो उनकी जिंदगी जीने दो ना भाई, क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हो? छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम हो तो खड़े हो जाओ, चालू हो। लेकिन अम्मा कुछ और चलाती है, और चलाते हैं। लव अफेयर्स 4.5%, ये आसान वो नहीं है। आप अफेयर चलाते क्यों हो? अफेयर चला रहे हो तो माँ बाप को बता दो कि मैं इसी से करूंगा, बिल्कुल सही है, कोई गुनाह नहीं है, माँ बाप को बताओ। ये और भी लव अफेयर्स और लिविंग रिलेशनशिप और ज्यादा बढ़ गया है। साथ रहे 5 साल तक और उसके बाद 6ठे साल में इधर लड़का कंप्लेन कर रहा है या लड़की को, सीधे कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, है ना? तो ये सब फैमिली एग्जाम फेल्यूर, ये सब ज्यादा है इसमें। देन प्रोफेशनल का भी देखिए, इट इज नॉट restricted to the educated, the family members, rural, urban, daily basis 23.4% लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं आज के टाइम में। अलीगढ़ में 3200 लोगों को निकालने के कगार पे हैं। How much they are getting? Around 10,000 to 12,000. उससे घर ही नहीं चल रहा है, and there is no guarantee of नौकरी। कब जैसे कि हम लोग टीचर हैं ना, तो 1 साल के हम लोगों की प्रोबेशन पीरियड होता है, इन लोगों का भी वो होगा, तो हम लोग लिखो पढ़ा शिफ्ट आकर रहते हैं कि 1 साल में विदाउट टेलिंग द रीजन यू विल बी किक्ड आउट। और उसके ऊपर तो डीडी का जो है वो मामला। हाउसवाइफ 15.4%, जो हाउसवाइफ हैं, देखो हाउसवाइफ इज ए बिग जॉब। सिग्नल देती है 3 दिन पहले कि नमक नहीं है, नमक नहीं है, तो मम्मी बीवी से फिर नमक नहीं है 3 दिन कैसे चला? सी द मैनेजमेंट, आलू खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। They are the best manager. The wives, they are the best manager. और उसके ऊपर भी उनके ऊपर कोई ज्यादती करे तो क्या हो जाता है? सुसाइड लोग कर लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ क्लास भी इसमें स्टूडेंट 7.4%। स्टूडेंट्स सुसाइड
कमिट कर रहे हैं। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द सुसाइड, डिप्रेशन? ये WHO का डाटा है, WHO का कहना है, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा वो नहीं कहूँगा। आदमी सुसाइड में चला जाता है तो एलूफ हो जाता है, लोगों से बात नहीं करता है, तो क्या करता है? देन फिजिकल कंडीशंस लाइक कैंसर, HIV बीमारी होता है तो उसको ये दिखती है ना कि माई लाइफ इज वेरी शॉर्ट, आई एम गोइंग टू डाई आफ्टर 6 months और 9 months। सो जो परेशानी होती है उससे परेशान होकर लोग कर देते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने एक्सप्लेन कर दिया इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको। फाइनेंशियल स्ट्रगल, पैसा कम है, खर्चे आपके ज्यादा हैं, ठीक। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जिसको 15,000 मिल रहा है वो भी 1-2 रोटी और सब्जी खाता है, हमें 3.5 लाख मिल रहा है, हम भी 2 रोटी 1 सब्जी और थोड़ा गोश्त बना लेते हैं। यही होता है ना। सोने की रोटी तो मैं टाटा बिरला तो नहीं खाता है, मोदी तो नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है, 2 रोटी ही खाएगा और सब्जी का भी इतना ही का फर्क है। सो वी शुड सी द पीपल हु आर बिलो यू इन इकोनॉमिक कंडीशन, देन वी विल बी हैप्पी। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी की एक बुराई अगर आप करते हो तो आप एंगर के शिकार होते हैं, एंजाइटी पे चले जाते हैं, उस लेवल पे चला जाता है। देन वर्क प्लेस अगर झगड़ा हो रहा है तो उसमें भी हो रहा है। एंड देयर आर फ्यू फैक्ट्स, इट्स रिसर्च नाउ 70 to 75% of people who attempted or complete suicide have given some verbal and non-verbal clues। देते हैं 3-4 दिन पहले से खामोश हो जाएंगे, जगह की तलाश करेंगे, मीन्स की तलाश करेंगे कि कैसे हमको दवा खाते होना है या अटकना है। मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। I did PG diploma from NCERT 1992। तो संडे का दिन हम लोग सब लोग इकट्ठे नाश्ता करते थे, तो किसी लड़की ने कहा कि यार आलम वो लड़की नहीं है, मैं तो सुसाइड करने गई होगी। मैं एट रैंडम ऐसे बोल दिया, तो उसने कहा कि सुसाइड क्यों करेगी, कहाँ करेगी? मैं कहा जाके छत पे देखो। All 4-5 friends we went there and she was walking। मैंने एक थप्पड़ दिए उसको, कहीं टेक्निक था कि उसका माइंड डाइवर्ट करना है, सुसाइड करना था, क्या कारण है? तो मेरे घर का इनॉग्रेशन है, मेरे पेरेंट्स ने नहीं बुलाया। छोटी छोटी बात पे जो कर लेते हैं। फिर हम लोग 2 लोग लेके उसको घर गए हरियाणा, चलो भाई उसके घर पे लेके गए। मैं कभी यहाँ मरना है तो माँ बाप के सामने। कोई 3 बार 4 बार अपने माँ बाप से आपने कहा कि हमें ये काम है, उन लोगों आपको नेगलेक्ट किया। दिस इज फॉर इमोशनल अब्यूज। तो जब वो आपका इमोशन हर्ट होता है ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। किसी ने इल्जाम लगा दिया आपके ऊपर, तब क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी से? तो ये है, वो एक क्लू आता है, तो उसमें आप लोग आइडेंटिफाई उसको कर सकते हो कि क्लू क्या है ना। खामोशी इख्तियार कर लेगा, जगह पर बोलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, और चेहरे से भी मालूम हो जाता है। एंड डिप्रेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑफ सुसाइड, other emotional factors, there are no 2 types of emotion, positive, negative, neutral भी होता है, total there are 27, but negative emotions ज़्यादा हैं। ये तो pleasure और ये तो समझ में आता है, लेकिन pain, anger ये सब क्या है? नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सो जब भी आपका डाउन हो ना कुछ, तो दोस्तों से बात कर लीजिए, कुछ मोबाइल पर जोक निकाल के देख लीजिए, आप वो हो जाएगा। Then many people who have attempted, जो एक बार अटेम्प्ट करता है दोबारा नहीं करेगा, वो मजा चका होता है। सुसाइड इज मोर कॉमन इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास। जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है उसमें ज्यादा पाया जाता है। ये बाकी तो आप देख ही रहे हैं। टाइम हमारे पास कम है, तो मैं आपको थोड़ा सा एज ए एजुकेटेड और पर्सनल लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ केयर एंड वेलबींग। सर एक यहाँ पे आप बना दीजिए छोटा सा रूम, और उसका नाम रख दीजिए मेंटल हेल्थ केयर एंड वेलबींग, है ना। उसमें कोई टीचर से बैठ के शेयर कर ले, कुछ कर ले। हाँ, एक ऐसा भी रूम बना दीजिए कि जाके बच्चे वहाँ पे जाके एक बॉक्स बना दीजिए, है ना, और कह दीजिए कि अपना जो इमोशन हो उसको जो है उस बॉक्स में डालते करो। आप लोग डालना, नाम मत लिखो,
टीचर के अगेंस्ट हो, मैनेजमेंट के अगेंस्ट हो, डाल दिया करो। एक तो फायदा ये होगा कि मैनेजमेंट भी जो है ना, एक हफ्ते में एक टीचर्स की मीटिंग बुला के उसको सिर्फ पढ़ देगा कि भाई ये है। तो हमारे टीचर भी कभी कभी हम लोग जो है ना जोश में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, जो कि बच्चों को बुरा लगता है। अब मेरी आदत ऐसी है कि मैं 5 मिनट किसी को लेट क्लास में अलाउ नहीं करता। 5 मिनट तक छोड़ दिया वो बंद कर देता हूँ। फिर बहुत से बच्चों ने कंप्लेंट की, मेरे बात है कि मैंने क्लास में कहा कि 5 मिनट पहले घर से निकल जाएगा, वो क्या दिक्कत है। हाँ, अगर कोई मेजर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, तो आपके इमोशंस भी निकल जाएंगे, मैनेजमेंट को भी पता लग जाएगा, टीचर्स को भी पता लग जाएगा, और उस पर न किसी टीचर को कोई सजा मिलने वाली है, फायदा आपको होगा कि आप अपने इमोशंस को निकाल रहे हैं। तो एक बॉक्स रख दीजिए और उस पर रख दीजिए, हॉस्टल में रख दीजिए, अपने निकाले वो, और हफ्ते में एक 15 मिनट की मीटिंग टीचर से कर लीजिए, महीने में एक बच्चों से बात कर लीजिए, बहुत इससे फायदा होगा। तो मेंटल हेल्थ केयर एंड पॉजिटिव थॉट, ऑलवेज अपने दोस्तों को भी अच्छी बात करो ना यार, गंदी बात क्यों करते हो, किसी की शिकायत क्यों करते हो। इस्लाम में तो क्या गंदी बात तो क्या है, वो हदीस बयान करने की जरूरत नहीं है। और हमने कहा ना कि जो थॉट्स आपके आते हैं वो कितने आते हैं, 80,000 थॉट्स डेली आते हैं, और 48,000 नेगेटिव होता है, और बाकी जो है 28,000 जो है पॉजिटिव होता है। और फिर सुबह आप उठे तो यहीं से शुरू कर, अच्छे उसने मेरा कॉल नहीं उठाया था, मैं बता या मैं बताता, आज देख लूंगा उसको, रास्ते में चल रहा हूँ साइड नहीं दे रहा, अरे उसको मार दो एक डंडा। ये सब नेगेटिव चीजें आती है। तो नेगेटिव अगर डालते रहोगे तो उसकी तादाद ज्यादा होगी, तो आपका मेंटल हेल्थ कहाँ से रहेगा, मेंटल हेल्थ से नहीं रहेगा, तो मेंटल इलनेस आपको होगा। देन सबसे बड़ी चीज ये है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, अपने आप को समझो। अभी हमने बेग साहब को एक शेर सुनाया जो मैंने लिखा, मुमकिन है या ऐसे कह लो आसान है अल्लाह की जात को समझना, मुमकिन है अल्लाह की जात को समझना, नामुमकिन है अपनी जात को समझना। आप जरा सोचिएगा इसमें से कितने लोग अपने मेरिट और डीमेरिट को पहचानते हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आप एक काम कीजिएगा, आप घर जाइएगा, रात में एक कागज पेन लीजिएगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आप लिखिएगा कि आपकी 10 अच्छाई और 10 बुराई 100% कितनी है। मेरा दावा है you will not find a single अच्छाई in you 100%। बुराई जब लिखिएगा तो शायद बहुत लिख लीजिएगा, मैं झूठ भी बोलता हूँ, मैं धोखा भी देता हूँ, ये सब चीजें आ जाएगी। तो वो ये एक्सरसाइज आप लोग करके देखिएगा। और क्यों मैं कह रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव योरसेल्फ, जब आप लिखेंगे तो आपका मेंटल सेल्फ वो बनेगा। और डेली क्या होगा कि जब भी आप बुराई करोगे तो आपको आपको लिखा था ये छोड़ो नहीं करता, तो 2 महीना 3 महीना में ये रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन अभी मैं पूछूं कि जरा उसके बारे में बताओ तो 10 बुराई बता दो, इनसे कहूँ तो वो बता देगी, है ना। या अगर ये मैनेजमेंट बुला के कहे वी आर गोइंग टू गिव यू 10,000 as a scholarship, so tell something about your friends and there is only one scholarship, सबके बारे में 2-4 हजार बुराई बता दो। लेकिन जब आप करते हो ना तो ये 3 इधर को होता है। तो ये थोड़ा एक्सरसाइज करके आप करना। देन पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल में क्या है कि आपको कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, ठीक। जब आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा ना, आप सुसाइड के बारे में सोचोगे ही नहीं। मेरा दावा ही, हम लोगों के दिमाग में कभी नहीं आया कि सुसाइड कर, कभी नहीं आया खुदकुशी कर, कभी नहीं आया, ठीक। क्योंकि हमें मालूम है कि नेगेटिव चीजें कितना आती हैं। एंड देन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कभी आएंगे तो इसी पॉइंट को बोलेंगे, और आज भी हम आपको बोल रहे हैं कि God has given 24 hours and there is no discrimination that God has given us the year, the world, the time, नहीं है ना। 24 घंटा में सब मैनेज कर रहे हैं, चौधरी साहब पूरी पुलिस को मैनेज कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब पूरे इस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहे हैं, टीचर भी क्लास मैनेज कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट व्हाट यू डू, you can divide 24 hours into 3 categories, 8 plus 8 plus 8. 8 hours for sound sleep. 7 to 8 hours is research out that it is beneficial for you. So if you are sleeping for 7 to 8 hours,
so your mind will be fresh. Then 8 hours for your study, and 8 hours for your exercise, helping people, helping your mother, doing some extra job, playing and other things. आप करके देखना जरा. Don't be strict. अगर 7 घंटे के बजाय 8 घंटा सो गए, लेकिन 8 घंटा से ज्यादा सो रहे हो, 6 घंटा से कम सो रहे हैं, then you are not mentally, you are mentally sick. ये एक है. हाँ, कभी कभी ठीक है, थके हुए 10 घंटा सो गए, वो बात अलग है. आप ये करके देखो. और मेरा ये कहना है, if you put only 6 to 7 hours per day on your study, you will get more than 90%, and you can crack any examination. आपके अलीगढ़ के बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ना तो वो टैलेंट पहचान रहे हैं, ना एफर्ट. मैं कई जगह इंटरव्यू में जाता हूँ, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है उनको बच्चों को, और ना ही बोलने का सही तलफुज उनका सही है. लेकिन प्रीलिम तो क्वालिफाई करके आया भाई, मेंस तो क्वालिफाई करके आया है. उसको जहाँ 50 में 32 नंबर देना है, मैं 34 देता हूँ. मैं क्या कह देता हूँ कि ये देहात का बच्चा है, ये तो क्रैक करके आया है, इसका हाथ बनता है. आपको तो बोलने भी आता है, कपड़ा पहनने भी आता है, इंस्टीट्यूशन है. तो अगर 6 से 8 घंटा पढ़ो ना, लेकिन शर्त ये है कि मोबाइल 1 घंटा का, वो भी देखो, कोई वो है ना, जब मूड खराब हो 1-2 मिनट के देख लो, क्या करना है. तो ये आप कीजिए. मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉर एवरीवन. पॉजिटिव, इसका क्या मतलब हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1937 में एक स्टडी स्टार्ट की. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ? खुश होने का क्या है? लगभग 70 साल के बाद अपने जितने एलुमनाई थे उनको बुलाया और उनसे यही सवाल पूछा कि बताओ भाई. सो एवरीबॉडी सेड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप. खुश रहने के लिए रिलेशनशिप अच्छा है. अब यू कैन अप्लाई एट योर होम, यू कैन अप्लाई एट योर वर्क प्लेस, यू कैन अप्लाई इन द क्लासरूम, एवरीवेयर. अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं दोस्तों से, माँ बाप से, हस्बैंड वाइफ, वर्क प्लेस पे, कोई टेंशन ही नहीं होगा. मैं कभी जहाँ भी कहीं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारा दोस्त बहुत सा है. रिसेंटली आई वेंट टू कालाकांड, तो मेरा एक जानने वाला IAS ऑफिसर कि मैनेज एवरीथिंग, कोई टेंशन ही नहीं था. जहाँ जाए गाड़ी, सिक्योरिटी, फला कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि फैमिली मेरे साथ थी. और भी कहीं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अली कहाँ पे है. तो मेंटेनिंग रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पीनेस. देन सेंस ऑफ ह्यूमर, जब मूड खराब हो तो देख लो. रिलीजियस एक्टिविटी, देयर आर सो मेनी टाइम, देयर आर सो मेनी कंडीशन एंड सिचुएशन वेयर यू कैन शेयर विद आवर फ्रेंड्स, कैन नॉट शेयर विद द टीचर्स. अल्लाह से शेयर. अल्लाह कहता है ना कि हमसे मांगो. आप देखिएगा जो क्रिश्चियंस हैं उनमें एक कन्फेशन रूम बना हुआ है, वहाँ जाकर लोग अपनी बुराई कर सकते. और अल्लाह तब कहता है कि समुद्र बराबर भी तुम गुनाह कर देते हो तो मैं 1 मिनट में खत्म कर दूँ, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए. इवन कि ज़िना वाले को भी अल्लाह ताला माफ करता है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए. तो आप थोड़ा सा करो इस चीज़ को. जो बच्चे हिंदू हैं वो जरूर पूजा करें, जो उनको अच्छा लगता है देवी देवता उसकी पूजा जरूर करें. सुबह में करें, शाम में करें. हमारे लिए तो 5 टाइम बना हुआ है. Why the God has made 5 times. कभी सोचा है आपने उस पे? आप मेडिकल क्या हो, वजू का क्या है सिग्निफिकेंस? आप देखो जरा जाके कि जब ऐसे हाथ करते हो ऑपरेशन से पहले, तो जब कहा जाता है सब नीचे चला जाओ. बार-बार रिसर्च करके ये बता रहे हैं 5 टाइम इसलिए कि 5 टाइम आप फ्रेश हो जाओगे. कोई टेंशन नहीं है. नमाज में जो भी होगा, अभी कोई गुनाह हुई, किसी से झूठ बोला, अल्लाह से कहा बताना माफ करो, ये नहीं कि फिर दोबारा जाके वो झूठ बोलो, फिर तो मुश्किल हो जाता है. Then you try to understand the meaning of your life. What is the meaning of your life? Why Allah has sent to you here? आपको कुत्ता बिल्ली बना देता था, आपको इंसान क्यों बनाया? इसमें भी सोचना. आप सोचो कि एक ही यहाँ से बोझ था, इसमें से नाखून निकल रहा है, बाल निकल रहे हैं, आँख निकल रही है. कोई दुनिया में बना सकता है इसको? तो किसी ना किसी मकसद से अल्लाह ताला को भेजा है. भाई नमाज रोजा करना तो उसकी इबादत है, लेकिन सोसाइटी में क्यों भेजा है? और क्यों अल्लाह ताला ने कह दिया कि आपको अपना काम भी करना है, शादी भी करना है, रोजा नमाज भी करने हैं, सब काम करना है. तो आप क्या है, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करते हो? माँ बाप के लिए क्या कंट्रीब्यूट करोगे? सो ये
एक जो है एनहांस मेंटल हेल्थ सपोर्ट इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये खास करके हमने ये लिखा है कि ये आपका इंस्टीट्यूशन जो है आपके ऊपर एक एहसान तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि आपको बताए, ताकि टाइम टू टाइम इस तरह का प्रोग्राम हो, आपके बाद दूसरे बच्चे आएंगे, तीसरे बच्चे आएंगे, तो आपको मालूम हो कि क्या है गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड गवर्नमेंट, कल हमने बोला है कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है बता दीजिए, आप हमारे ऊपर तो इतना सारा एक्टिविटी इम्पोज कर रहे हो, आपकी पॉलिसी क्या है बताइए, कुछ है क्या? प्राइम मिनिस्टर कभी बोलता है इसके ऊपर? क्या प्राइम मिनिस्टर शेयर करता है भाई मन की बात सुना दी है, हो गया, दूसरे की मन की बात सुनो ना। तब उस कल मैंने बोला है हायर एजुकेशन के वो जॉइंट सेक्रेटरी थी, हमने कहा बच्चों से भी तो पूछो, ये नहीं प्लांटेड हो कि 5 बच्चे उठाया उसे जाकर स्टेटमेंट दिलवा दिया। आप 200 बच्चों का करो, आप चुप हो जाओ और रैंडमली कहो कि जो बच्चा पूछना चाहे पूछे। सो दीज आर द थिंग्स। आप मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जितना कीजिएगा सुसाइड उतना रुकेगा। इन द एंड आई एम गिविंग यू ओनली 3 minutes. If you have any clarification, if you want to give me some suggestion, you are welcome. Any suggestion? सर एक क्वेरी है। Yes, yes sir. सर अगर कोई आदमी सुसाइड करने वाला है या ऐसा हमें कैसे पता लगे, सिम्टम क्या होंगे? ये तो वो जाने या अल्लाह जाने, लेकिन फिर भी जरा हमारी हाँ, सोसाइटी मैंने बताया ना कि थोड़ा रूटीन लाइफ से हट जाएगा वो। जैसे कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ के करे, लोगों से बातचीत करना कम कर देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, खाना पीना उसका कम हो जाएगा, है ना, ये सब सिम्टम्स हैं। जी मैडम। व्हाट इज द रोल ऑफ स्लीपिंग पिल जस्ट लाइक क्लोनाजिपाम एल्प्राजोलम साइकोलॉजी में आपके यहाँ हम जाते हैं पेशेंट को मैं पहले ही आपसे कह दिया कि आई एम प्योर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। साइकेट्री में हमारे नहीं एल्प्राजोलम वगैरह जो है वो ठीक है, नींद की दवा देते हैं, तो लेकिन उसका सर ये हेल्प करती है नहीं, उसका साइड इफेक्ट होता है, उसको शांत करना है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत जरूरी है। तो ये सब साइड भी नहीं इफेक्ट बहुत होता है उसका। नहीं, अगर केस बढ़ गया तो और कोई इलाज नहीं है, उस दवा के साथ साथ काउंसलिंग भी। एक अभी मैं एक केस डील कर रहा हूँ डॉक्टर के लिए, नाम नहीं बताऊँ, तो अभी 4 सिटिंग उसके साथ हुआ है। हमने 4थे सिटिंग में कहा कि दवा बंद करो और क्या क्या करना है वो हमने उसको बताया, तो इम्प्रूवमेंट तो होता है, लेकिन बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट होता है। एक जो बात दिल को लग जाती है ना, वो देर से ही होती है। किसी लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया, इतना जल्दी नहीं निकलती है, वो शादी के बाद भी याद रखता है, तो धीरे धीरे करके निकलता है, टेक्स टाइम, ठीक है। नहीं, या कि आपको किसी ने हर्ट कर दिया, वो भी बहुत धीरे धीरे निकलता है। अभी डिपार्टमेंट में क्या हुआ, 2 टीचर मेरे पास आए कि सर बच्चों के सामने आप बोल देते हैं, मैं क्या सॉरी, मैंने फट से उसको सॉरी कहा, मैं कहा चलो हंसो चलती। तो ऐसे करके जो है डे टू डे लाइफ का आप असेसमेंट कीजिए, तो नेगेटिव चीजें कम होंगी, ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ओके, इन द एंड आई एम थैंकफुल टू चौधरी साहब, प्रिंसिपल साहब, बेग साहब, शकील साहब, एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। You people call me, I will be always here. You note down my mobile number, and if you have any emergency or urgency, so call me in the night after 9. लेकिन ये आप कह दीजिएगा कि एशियन से हम बोल रहे हैं, हम बहुत बड़े कोई आदमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इधर मेरा एंगेजमेंट बढ़ गया है, तो 790 67 69 531, or you can share with your personal problem, and I assure you that I am not going to reveal with anybody. Sir, please repeat the number. 790 67 69 531. Thank you very much. Thank you. Actually, I have a question. So, sir, let me tell you the full story first. So, मेरी छोटी बहन है 12th standard में है। नहीं, क्या नहीं बात पब्लिक मत करो ना यार।
पर्सनली कर लेना। पब्लिकली जो है ना, नहीं आप कोई भी काउंसलिंग की प्रॉब्लम है पब्लिक मत कीजिएगा। हो सकता है उसमें देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि आप जो कहेंगे उसी से शेयर कीजिए जिसमें आपको ट्रस्ट है। वो किसी और से कह देगा, किसी और से कह देगा, किसी और से